Hello, my dear students. Welcome back to my channel Educational Corner. As you are aware that we are doing lesson number 9 from our Science Curiosity book, Methods of Separation in Everyday Life. So I have come back with part 2, further explanation of this lesson. In the previous part, if you remember, we have learned few methods of separation. These were hand picking, then threshing, winnowing, and sieving. Right? So we are going to learn further in this part. This is part 2. If you have not seen part 1, please do see part 1 explanation of this chapter. Now today we'll proceed further to part 2, lesson number 9, methods of separation, and we will learn some other methods today. So let's get started. Activity 9.3. Let us investigate. This activity may be demonstrated by the teacher. So this activity has to be demonstrated or has to be done by the teacher. Okay, means under the adult supervision. Take some salt solution prepared in activity 9.2. So last activity जो हमने करी थी उसमें हमने salt solution बनाया था. So you have to take that salt solution in a china dish. If china dish is not available, another suitable vessel may be used. So you can use any suitable vessel which you are having. Heat and let the water boil away as shown in figure 9.8. So पानी को क्या करना है, हमें उबालना है. Allow the china dish to cool. उसके बाद उसको cool करना है. What do you observe? What is left in the china dish? Did you get the salt back? You can feel the presence of salt in the china dish by touching the salt with the fingers. तो जैसे वो evaporate होता रहेगा पानी, तो पीछे क्या रह जाएगा? Salt रह जाएगा. This you can feel using your fingers. Caution: be careful while heating the china dish. Is there any method through which I can get back both salt and water? क्या कोई ऐसा मेथड है कि मुझे सॉल्ट भी मिल जाए और वाटर भी मिल जाए? ठीक है, अभी तो हमने क्या किया, अभी हमने वाटर को इवेपोरेट कर दिया तो हमें सॉल्ट मिल गया, वाटर नहीं मिला. बट इज देयर एनी अदर मेथड? यस, इज देयर इज वन मोर मेथड. ऑब्जर्व द फिगर. डज इट आंसर द क्वेश्चन? कैन यू नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड? नाउ दिस इज द फिगर एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच प्रोसेस इज दिस. It is now time for them to visit Dada and Dadi, paternal grandparents. तो जो पेरेंट्स जो फादर की साइड के होते हैं उनको हम पैटर्नल बोलते हैं. तो दादा दादी पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया. तो वो उसके दादा दादी कहाँ रहते थे? पुडुचेरी में, सदर्न इंडिया में. Mali and Wali are excited to meet their old neighborhood friend Balan. After reaching Puducherry, they start talking about the old times and do not realize that it is already evening. Dadi's टी टाइम. सो जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, मल्ली और वली जो है वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड जो है ओल्ड फ्रेंड के साथ मिलने में बहुत एक्साइटेड थे बलन. और जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं ओल्ड, हमें अब पुरानी बातें याद करते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं लगता है ना, ऐसे ही होता है ना. दादा: आई शेल प्रिपेयर टी फॉर यू. चिल्ड्रन: वी विल ऑल्सो हैव. तो दादा ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर करता हूँ. बच्चों ने कहा हम भी आपकी हेल्प करेंगे. एज दादा मेक्स अ टी, ही शेयर्स टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी. तो जनरली जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम बच्चों को, जब अगर बच्चे हमारे साथ हो तो हम उनको भी सिखाते हैं ना. आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते होंगे जब आप किचन में उनकी हेल्प करते हो. अच्छा, सैंडविच कैसे बनाते हैं, है ना, मैगी कैसे बनाते हैं, टी कैसे बनाते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स उनके जो दादाजी थे उन्होंने भी उनको टिप्स बताए कि टी कैसे बनाते हैं. बलन: आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, हाउ डू यू रिमूव द टी लीव्स. बलन ने पूछा कि टी तो बन जाएगी बट उसकी जो टी लीव्स है हम उसे कैसे रिमूव करेंगे. दादा: ऑब्वियसली विद स्ट्रेनर. स्ट्रेनर क्या होती है? छन्नी. यू नो इफ वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द टी लीव्स. अगर स्ट्रेनर नहीं है तब भी रिमूव कर सकते हैं. वली: हाउ. दादा:
Leave the saucepan vessel containing tea leaves undisturbed for some time and gently pour the tea in the cup. तो जो आपके पास जो वेसल में जो सॉस पैन में आपके पास जो टी है उसको छेड़ो मत, थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दो और फिर एकदम से कप में डालो तो वो जो टी लीव्स होंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी वली. Oh yes, and then the tea leaves will be settled at the bottom. The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of the liquid is called sedimentation. When the water liquid is removed by tilting the vessel, the process is called decantation. So two processes हमने यहाँ पे देखिए. फर्स्ट प्रोसेस है जब हेवियर ऑब्जेक्ट जो भी है या कंपोनेंट वो नीचे सेटल हो जाता है ना लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. और जब वाटर इज रिमूव्ड, वाटर को हम रिमूव करते हैं किसी भी चीज किसी भी वेसल से, कैसे उसको टिल्ट करके टेढ़ा करके, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन. Oh, decantation is also used in washing and cleaning of rice and pulses. Yes, correct. जब हम राइस और पल्सेस धोते हैं, जब हम चावल धोते हैं या हम दाल धोते हैं, उस टाइम पर भी हम डिकेंटेशन का यूज करते हैं. ठीक है, यूज करते हैं ना. दाल में से एक्स्ट्रा पानी जब निकालते हैं तो हम जो भी वेसल होता है उसको टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. In the chapter Material Around Us, you have studied that oil does not mix with water and forms a separate layer when left undisturbed for some time. Which method of separation would you use to separate oil and water? तो आपने जब ये लेसन पढ़ा था, हमने जब मटेरियल अराउंड अस पढ़ा था ना, तो उसमें ये बताया था कि कई चीज़ें वाटर के साथ मिक्स नहीं हो सकती हैं, जैसे कि वाटर एंड ऑयल. तो इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? Let us read further. Dada, but I can still get a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all tea leaves from the tea. तो डिकेंटेशन से सारी टी लीव्स जो हैं वो रिमूव नहीं हो सकती, इसीलिए कुछ कुछ टी लीव्स जो हैं वो उनके मुंह में आ रही थी. बलन, oh, it means it is not a proper method of separation. Dada, yes, you are right, the tea is ready now. Mali picks up the tea strainer from the shelf and gives it to his दादा. तो ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है सेपरेशन का. वाई? क्योंकि प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं हुआ, टी से टी लीव्स जो है प्रॉपर तरीके से सेपरेट नहीं हुआ. लेट अस पोर द टी थ्रू स्ट्रेनर. अब वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रेनर, छन्नी से टी को डाल रहे हैं. You can see all the tea leaves collected in the strainer. This process of separating tea leaves from tea is called filtration. तो हमने क्या किया? फिल्टर कर दिया. चाय को जो है वो टी लीव्स के साथ निकाल दिया और इसको फिल्टर कर दिया. So this process is called filtration. Balan asked Mali if he could use a tea strainer to filter muddy water. अब वो क्या पूछ रहा है बलन जो है वो मली से कि क्या हम वी कैन यूज अ टी, जो हम छन्नी यूज कर रहे थे, क्या हम उससे मडी वाटर को कर सकते हैं? लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. फिल्टर कर सकते हैं. ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस. अगर हम एक क्लॉथ के पीस से करें और हम स्ट्रेनर से करें तो क्या डिफरेंस होगा? सी यहाँ आपको मैंने स्टेप्स दिए हैं. स्टेप 1 में मड नीचे आ गया और वाटर ऊपर है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ये आपने डेफिनेशन पढ़ी, सेटलिंग डाउन हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ लिक्विड. तो ये हैवी कंपोनेंट नीचे आ गया, पानी ऊपर रह गया. दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. अनडिस्टर्ब छोड़ दिया हमने से. स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में क्या है? हमने टिल्ट करा है. ठीक है, टिल्ट करके जो भी चीज हम वाटर एक्स्ट्रा निकालते हैं उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन. थर्ड स्टेप आप देखो, यहाँ पर हमने फिल्टर पेपर यूज करा है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. मली, वाई शुड वी यूज अ पीस ऑफ क्लॉथ? अब वो कह रहे हैं कि क्लॉथ क्यों यूज करना है? दादा, इन अ पीस ऑफ क्लॉथ देयर आर very small holes or pores between the woven threads. These pores in the cloth can be used as filter. People of ancient times also followed this practice. How many layers of cloth do I need to use to get the clear water? अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूछा पीस ऑफ क्लॉथ क्यों यूज करना है. एक्चुअल में जो पीस ऑफ क्लॉथ वो यूज कर रहे थे उसके अंदर स्मॉल होल्स या पोल्स, ये पोर्स थे. पोर्स मतलब क्या होते हैं? छेद होना. ठीक है,
तो वो छेद जो थे ना, दीज पोर्स इन दी क्लॉथ, वो क्या यूज करते हैं एज अ फिल्टर। पुराने टाइम में लोग जो है वो फिल्टर पेपर को ही यूज किया करते थे, ये क्लॉथ को यूज किया करते थे, नॉट द फिल्टर पेपर। दे ट्राई टू यूज दिस क्लॉथ। बट इफ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर वाटर फिर भी मडी लगता है, आपको मिट्टी वाला लगता है, impurities कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ फिल्टर with even smaller holes or pores. A filter paper is the one such filter that has fine pores in it. ठीक है, वैसे तो क्लॉथ से कर रहे हैं, अगर क्लॉथ के बाद भी आपको लगे मडी है, उसके बाद आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हो, जिसके अंदर और छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो इजीली उसको फिल्टर कर देगा। Activity 9.4, let us experiment. Try to fold the filter paper yourself and make a cone as shown. अब आपने क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है, एक फोल्ड करा या 2 फोल्ड करे और एक कोन शेप बन गया। Place it inside a funnel kept on a conical flask and pour the filter paper into it. ठीक है, आपने क्या करना है, एक नीचे आपने एक फ्लास्क रखना है और एक फनल में आपको फिल्टर पेपर को रखना है। What do you observe? Do the mud particle pass through the filter paper? The water coming from the funnel will be collected in conical flask. तो जो भी mud particles होंगे वो क्या होगा, filter paper पे रुक जाएंगे। See, filter paper like this you have to make the cone. You will get mud as a residue on the filter paper and clear water as filtrate in the conical फ्लास्क। तो फ्लास्क में आपको जो है वो क्लियर वाटर मिल जाएगा और जो फिल्टर पेपर है उसमें मड मिल जाएगी। अदर देन द फिल्टर पेपर, many materials such as cotton, charcoal and sand can be used as filters. The choice of filter depends upon the size of the particles of the materials to be removed. तो फिल्टर पेपर के अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं, कॉटन, चारकोल, सैंड, ये सब भी एज अ फिल्टर यूज किए जा सकते हैं। द चॉइस किस पे डिपेंड करती है कि साइज क्या है पार्टिकल का या क्या मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, मतलब उस पे डिपेंड करती है। एक्टिविटी 9.5, लेट अस डिजाइन एंड क्रिएट। वली गोज फॉर अ नेचर वॉक विद हर दादी एंड collects some water from a pond in a container. She observes some unwanted substance in it, design and create a working model of water filter using low cost material. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी दी है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि वली जो है वो नेचर वॉक के लिए जाती है अपनी दादी के साथ। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक पॉन्ड उसे नजर आता है, तो वो थोड़ा सा पानी उसको एक कंटेनर में डालती है, बट साथ ही साथ वो ऑब्जर्व करती है, देखती है कि उसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस है। तो आपको एक वर्किंग मॉडल बनाना है वाटर फिल्टर का और लो कॉस्ट मटेरियल्स पे। Tea bags were initially made of soft cloth, like silk, because it could hold the tea leaves, and let water pass through. Silk was strong and did not fall apart when it touched hot water. Later, people started using gauze or muslin. Eventually, they began using filter paper, which is what most tea bags are made of today. तो पहले के टाइम पे टी बैग्स जो हैं वो सॉफ्ट क्लॉथ के बने होते थे, जैसे कि सिल्क के। ठीक है, तो सिल्क से क्या होता था, वो सिल्क जो है ना वो उसको टी लीव्स को अच्छे से होल्ड करके रखता था और उससे वाटर पास हो सकता था। बट सिल्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जो हॉट वाटर में जैसे ही लेकर आते थे टी लीव्स को, इतना इफेक्ट नहीं आता था। ठीक है, तो लेटर लोगों ने क्या किया, लोगों ने मसलिन क्लॉथ यूज करना शुरू किया टी बैग्स के लिए, और आज के टाइम में लोग क्या यूज करते हैं, फिल्टर पेपर यूज करते हैं। अगर आपने कोई टी बैग देखा हो आपके घर में तो वो फिल्टर पेपर से कवर्ड होता है। Mali and Wali go on a boat ride in a nearby river with their dada and his friend. Otukam is a fisherman. As they cast the fishing net, water drains out through the mesh. तो मली और वली जो है वो बोट राइड में जाते हैं अपने दादा के साथ, ठीक है, और फ्रेंड के साथ। और ओटुकम जो है वो वहाँ पे एक फिशरमैन है, और जैसे ही वो फिशिंग नेट जो है पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जैसे पानी जो है वो सारा मैश मतलब जो जाली बनी होती है उसमें से निकल जाता है। Wali recalled the filtration method she had learned and realizes that this method of catching the fish is somewhat similar. तो उसको याद आता है फिल्टरेशन मेथड, ठीक है, और उसको लगता है कि फिश को कैच करना जो है वो
एक वही प्रोसेस है, फिल्टरेशन प्रोसेस. Mali is taken aback when he saw plastic bags, broken bottles of large fish with straw stuck in its mouth, and food wrappers along with the other fish trapped in the net. तो मली को बहुत बुरा लगता है देखकर कि प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन बॉटल्स जो है वो उसमें होती हैं, पानी में होती हैं. ठीक है, तो फिश वगैरह जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट है अगर हम लोग रिवर्स में प्लास्टिक बैग, ब्रोकन बॉटल्स डालते हैं, स्ट्रॉ डाल देते हैं, उनके माउथ में चली जाती है, चोक कर जाती हैं. फूड रैपर्स उनके अंदर जो है चले जाते हैं उनकी बॉडी में और उनको जाके कितनी तकलीफ देते हैं. ठीक है, सो दे ट्रैप एंड अदर फिश ट्रैप्ड इन द नेट. डिस्कस विद योर पेरेंट्स. A ball of milk in your home has gone sour. Discuss with your parents how can you use it in another way. Also, which method of separation will you use in this process. तो आपके घर में क्या हुआ कि एक बाउल ऑफ मिल्क, ठीक है, एक दूध का बाउल जो है वो sour मीन्स खट्टा हो गया. आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि इसको हम किस मेथड के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे अदर वे में यूज कर सकते हैं. We can use the sour milk to make paneer by heating the milk and putting the vinegar or drops of lemon into it and then strain it into using a strainer. This process used is filtration. तो जो खट्टा जो मिल्क है, ठीक है, जो खराब हो गया मिल्क, उसको क्या करेंगे, उसमें अगर आप विनेगर डाल दो, सिरका डाल दो या फिर लेमन के ड्रॉप्स डाल दो तो क्या होगा, वो पनीर बन जाएगा. उसको हीट करोगे मिल्क को हीट करने के बाद उसमें विनेगर या लेमन ड्रॉप्स डालोगे तो वो जैसे ही आप स्ट्रेन करोगे ना, छन्नी में डालोगे तो वो सारा पनीर आ जाएगा और पानी सारा निकल जाएगा. और इस प्रोसेस को बोलेंगे फिल्टरेशन. ठीक है. मली एंड वली टेक ब्लेसिंग फ्रॉम देयर दादा दादी, बिड गुड बाय टू बलन एंड ट्रेवल टू मध्य प्रदेश. अब वो दादा दादी से गुड बाय बोलकर कहाँ चले गए, मध्य प्रदेश. द ट्रेन रीचेज भोपाल इन मध्य प्रदेश. द सन इज राइजिंग and it's getting hot. On their way to Masi's maternal aunt home, they drink charge buttermilk in the dhaba roadside eatery. Mali asked the shopkeeper about the big painting hanging on the wall of the dhaba. Okay, so अब वो कहाँ रुके हैं, अब वो एक ढाबे पे रुके हैं जहाँ पर वो क्या पीते हैं, छाछ पीते हैं. छाछ क्या है, बटर मिल्क. आपने भी पी होगी जब समर्स से, तो आपने भी छाछ पी होगी. अब छाछ जो है एक वहां पर एक बिग पेंटिंग टंगी हुई थी वॉल पर. तो मली उससे क्वेश्चन पूछता है. द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स द पिक्चर शोज लेडी. अब ये एक लेडी की पिक्चर वहां पे लगी हुई है. ठीक है, तो शॉपकीपर समझाता है कि ये पिक्चर किसकी है. अ लेडी शोइंग चर्निंग. ये क्या प्रोसेस है, चर्न कर रही है, चर्निंग. सी द पिक्चर. Can you name one kitchen appliance which runs on electricity used for preparing buttermilk? Buttermilk के लिए आप क्या यूज करते हो, आपने वो बताना है. क्या कोई किचन अप्लायंस ऐसा है जो आप यूज करते हो इसके लिए. The process of churning curd using a big matni churner to separate butter. In this process, the butter is being lighter floats at the top while buttermilk is left behind. तो चर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कर्ड से, दही से बनती है. उसको चर्न कर करके एक मठनी होती है, चर्नर, जिससे बटर सेपरेट हो जाता है और ऊपर आ जाता है, टॉप पे आ जाता है क्योंकि लाइट हो जाता है. और जो आपकी जो बटर मिल्क है वो नीचे रह जाती है. ठीक है, घर पे भी लस्सी बनाते होगे, फेंट कर बनाते हैं, मदानी से बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं. ठीक है, उसको ही बोलते हैं यहाँ पर बटर मिल्क. Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friends upon returning home. Now it is time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. अब वो कहाँ पहुँच गए, अब वो शिलोंग पहुँच गए, कहाँ, कैपिटल ऑफ मेघालय. On their arrival at the Bua's paternal aunt house in Shillong, they notice a carpenter making a wooden door. Carpenter क्या बना रहा है, wooden door बना रहा है. While working, he accidentally drops a few iron nails in the sawdust. अब उसने क्या किया,
गलती से जैसे वो काम कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ, कुछ आयरन के जो कील होते हैं ना, जो नोकीले कील होते हैं, वो सॉ डस्ट जो जैसे जो भूरा निकल के आता है जब कारपेंटर काम करते हैं उसमें गिर गए। द कारपेंटर स्टार्ट हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स। अब उसने क्या किया, आयरन नेल्स को हाथ से उठाना शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन टेल द कारपेंटर टू वेट। They get a magnet from their बुआ। They ask the carpenter to move the magnet through the sawdust। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों ने, उनका माइंड चला, उन्होंने क्या बोला कि हम उनकी अपनी बुआ से एक मैग्नेट लेकर आए जाकर, और उसको क्या बोला कि एक मैग्नेट को सॉडस्ट पे मारो तो इससे क्या होगा, सारे जो नेल्स हैं वो इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। पढ़ा था ना हमने मैग्नेट वाले लेसन में। All the nails get attracted to it. Which method of separation did the carpenter use? Recall the chapter exploring magnet. ये कौन सा separation का method है? Magnetic substances. The substance which are attracted, magnetic substances कौन से होते हैं जो attract करते हैं एक magnet की तरफ? तो iron nail जो है ये magnetic substance है. Iron is a common example of a magnetic substance. Separation of magnetic and non-magnetic substance by using a magnet is called magnetic separation. तो ये भी एक separation का method है, ठीक है। Nowadays recycler use magnet to separate iron article from heap of waste। जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा होता है तो recyclers जो हैं वो क्या करते हैं, magnets use करते हैं ताकि iron articles जो हैं वो उसमें से waste में से अलग हो जाए। In many industries, the waste material often contains scrap iron। तो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी काफी आयरन जो है एज अ वेस्ट मटेरियल निकलता है। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स यूजिंग मैग्नेट फिटेड टू क्रेन्स। तो क्रेन के अंदर मैग्नेट फिट होता है, उसके थ्रू इसको सेपरेट किया जाता है। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज। तो जो आयरन बचती है, जो स्क्रैप आयरन होती है, जो मतलब जो स्क्रैप आयरन होती है उसको क्या करते हैं, रिसाइकल और रीयूज कर लेते हैं। Mali and Wali had delightful holidays and the Bharat Ki Yatra tour of India filled with fun will be everlasting memory for them। तो इनकी जो हॉलीडेज थी वो डिलाइटफुल रही, पूरी इन्होंने भारत की यात्रा कर ली, हर जगह ये घूम आए, जो जो इनके रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, सबके यहाँ पे हुआ है। They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substance। जैसे आपको नॉलेज मिली है उनको भी बहुत नॉलेज मिली, और वो सब जगह एक्सप्लोर करा है क्या, डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। Activity 9.6, let us play. Write the following phrases on small slip of paper. Separating small stone from pulses, churning curd to obtain butter, taking out green chilies from cooked dalia, dish made of cracked wheat or poha, dish made of flattened rice, taking out seeds from watermelon, sorting piles of sawdust and iron nails from the mixed heap of building material, picking marigold flowers from heap of flowers to make garland, separating pebbles from sand, separating coconut pieces from rice flour, separating oil from water, separating salt from salt solution। तो आपने क्या करना है, ये एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे इन सबको लिखना है। Now take two baskets, each representing one of the two purposes for which we can separate substances. Form two teams। अब आपने क्या करना है, देखो टू टीम्स बनानी है, यहाँ आपको टू बास्केट दी है। To remove any one of the component that is not useful, to separate two different but useful component। This activity help in assessing your understanding as to why we separate substance। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, जो आपको पीछे जो दिए हुए थे ना, उसी में से आपको उन चीज़ों को इसमें डालना है, टीम्स में बनाकर आपको क्या करना है, आपने सेपरेट करना है सब्सटेंसेस को, ठीक है। So this you have to do yourself, think and start doing it, okay। So with this we have completed this lesson. This is part 2 of the lesson. So I hope you have understood the lesson. So now I'll catch you up soon with the summary and back exercises of this lesson. So up till then, take good care of yourself. Goodbye.